زوردار تالیاں چاہیے. تھینک یو لارڈ. ایک بار اپنا دائنا ہاتھ اٹھائیے اور کہیے کتنا حسین وعدہ یہ کیا خداوند نے، کتنا حسین وعدہ یہ کیا خداوند نے، جہاں دو یا تین جمع ہوں میں ہوں حاضر ان میں، جہاں دو یا تین جمع ہوں میں ہوں حاضر ان میں، تجھے اکیلا نہ چھوڑوں میں مددگار بھیجوں، تجھے اکیلا نہ چھوڑوں ایک مددگار بھیجوں، تجھے انات بھی نہ چھوڑوں ایک مددگار بھیجوں، تجھے انات بھی نہ چھوڑوں ایک مددگار بھیجوں، اس کے سوا یہ بات ہے ہی کس نے، یسوع کے سوا یہ کب ہے بات کہی کس نے، جہاں دو یا تین جمع ہوں میں ہوں حاضر ان میں، جہاں دو یا تین جمع ہوں میں ہوں حاضر ان میں. آئیے یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیے. پریز دا لارڈ. کتنا خوبصورت وعدہ ہے، جہاں دو یا تین میرے نام سے اکٹھے ہیں میں ان کے درمیان میں ہوں. سو ہیپی اسینشن آف کرائسٹ آپ کہہ سکتے ہیں ایسے. یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا آپ کو مبارک ہو. ہیپی اسینشن آف کرائسٹ. آئیں اعمال کی کتاب ہم نے دیکھی ہے، تو اعمال کی کتاب میں واپسی آئیے میرے ساتھ مل کر دیکھیے. لکھا ہے نویں آئے، یہ کہہ کر وہ ان کو دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا. آئیں اس بات کے لیے زوردار تالیاں بجائیے. وہ اوپر اٹھا لیا گیا. پریز دا لارڈ. اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہاں یسوع، یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا. یہی یسوع جسے تم نے اپنے پاس سے اوپر جاتے دیکھا اسی طرح آئے گا. میں آپ کو بتاؤں، یہ جگہ جو ہے یہ بڑا سادہ سا بیان لوکا نے لکھ دیا، اس لیے آج چرچ کے اندر بھی اس کا سادہ سا ہی مزاج رہ گیا. ہم بہت موٹیویٹ ہوتے ہیں جب ہم یہ سنتے ہیں کہ یسوع کواری سے پیدا ہوا. We are so excited اور we are so amazed
پھر اس کے بعد ہم اس سے بھی بڑا امیزڈ ہوتے ہیں کہ یسوع میرے لیے، آپ کے لیے گناہوں کی خاطر صلیب پر مر گیا۔ ہم پھر کیا ہوتے ہیں؟ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، بوسٹ ہوتے ہیں اور موٹیویٹ ہوتے ہیں، اور چرچ بہت زیادہ موٹیویٹ ہے ان ساری باتوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد جب ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تو چرچ اور زیادہ موٹیویٹ ہوتا ہے، لیکن جہاں پر اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یسوع مسیح اب زمین سے اپنے پاؤں اوپر اٹھاتا ہے، اور چاہیے تھا کہ چرچ کو بھی اب اپنی آوازوں کو، اپنے سر کو، اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھانا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر ایک بات سیکھ لیجئے، جب یسوع مسیح نے اپنے پاؤں آسمان سے اٹھائے تو اس کا مطلب ہے ہم بھی اس زمین سے اپنے پاؤں اٹھائیں گے۔ ہیلیلویا! ہم اس ایگل کی طرح ہیں، ہم اس کبوتر کی طرح ہیں، ہم وہ پرندہ ہیں جو اڑیں گے۔ ہیلیلویا! جو اٹھائے جائیں گے اس زمین سے اوپر۔ اور ایسا سین کیوں میں نے کہا چرچ میں نیچے رہ گیا، کیوں چرچ نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا؟ کیونکہ لوکا نے اس کو بڑا سادہ سا بیان کر دیا۔ لکھا ہے یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا۔ بس سادہ سا جملہ، وہ دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا۔ اب میں اس بات سے ایک بات اور بھی جانتا ہوں کہ واقعی روح القدس کی تحریک سے لکھی گئی ہے بات، کیونکہ انسان کسی بھی بات کو جو ہے وہ بہت بڑھا کر بیان کر سکتا ہے، حالانکہ یہ بہت قدرت کی بات تھی، بہت زیادہ طاقت کی بات تھی، بہت بلندی کی بات تھی۔ یہ بھی ایسے ہی تھا جیسے کوئی کنواری سے پیدا نہیں ہوا، جیسے کوئی کسی کے لیے گناہوں کے لیے مصلوب نہیں ہوا، جیسے کوئی مردوں میں سے جی نہیں اٹھا، ویسے ہی یسوع مسیح کی مانند کوئی جسم میں زمین سے آسمان کی طرف نہیں اٹھایا گیا۔ بولو خداوند یسوع مسیح کی۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح ہمارا اس بات میں بھی کیا ہے؟ امیزڈ ہے۔ اچھا روح القدس نے کیوں شاگردوں سے سادہ سا لکھوا دیا؟ آپ دیکھ لینا، اس کے پیدائش سے زیادہ، اس کے مصلوب ہونے سے زیادہ، اور دیکھ لینا آپ دیکھ لینا کہ اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے سے زیادہ دنیا میں جو بہت بڑا ملینیم ہوگا، دنیا میں بہت بڑی جو سیلیبریشن ہوگی، دنیا میں جو بہت بڑی اور بلینز ٹریلینز لوگ اٹھائے جائیں گے، جو پوری ہر ایک شخصیت اس کے زد میں آ جائے گی، یہ وہی جگہ ہے جس کو بڑا ہلکا سا لکھ دیا کہ وہ دیکھتے دیکھتے اٹھا لیا گیا۔ آپ سوچئے کہ ایسے ہی چرچ اٹھایا جائے گا، ایسے ہی یہ چرچ، کیونکہ چرچ یسوع مسیح کی نمائندگی کرتا ہے، اور آج چاہیے کہ چرچ کو سینہ تان کر یہ منادی کرنی چاہیے، ascension of Christ, ascension of Jesus Christ. We are follower of Jesus Christ. یسوع مسیح کی ascension ہوئی ہے تو followers کی بھی ہوگی۔ ہیلیلویا ہیلیلویا۔ ارے جب مسیح کرسچن یسوع مسیح کی طرح مرتا ہے تو یاد رکھیے وہ جی اٹھے گا۔ اچھا ایک گل اور بھی سنو، یہ پرندے کو بھی ظاہر کرتا ہے جو ایگل ہے، اور یہ کبوتر کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور اس کی شخصیت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اور جب ہم اٹھائے جائیں گے تو ایک بڑی سادی سی بات جو میں نے بہت زیادہ ملیشیا میں سنی، جو وہ دن رات بھولتے ہی نہیں اس بات کو، ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جس دن میں نے وہ لفظ نہیں سنا تھا، اور حالانکہ وہ لفظ پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ تک لکھا ہوا ہے، ہر دن میں نے سنا، کئی بار سنا، عورتوں سے سنا، مردوں سے سنا، بھائیوں سے سنا، بہنوں سے سنا، انہوں نے دماغ سے ایک لفظ ٹاپ آف دا لسٹ ہے، اور وہ پتہ لفظ کیا ہے؟ We are foreigners, refugees اور pilgrim، مسافر، ساری دیہڑی ایہوئی کہندے نے we are refugees here۔ تو جب کسی ملک میں آپ ریفیوجی ہوتے ہیں تو آپ کے بہت سارے رائٹس نہیں ہوتے، آپ ایک ہی چیز کے منتظر ہوتے ہیں کہ کب ہمیں اسٹیٹس ملے اور ہم اگلے ملک میں جائیں، اور وہاں پر آپ کو نیشنلٹی ملتی ہے،
اور بائبل پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ تک بتاتا ہے تیرا یسوع آیا اور تیرا یسوع اس زمین پر سکھا کر گیا. وی آر پلگرم، وی آر فارنرز. اے میرا دیس نہیں، دیس میرا کوئی اور ہے. اور بہت ساری چیزیں ارے جسم میں ہم نہیں کر پاتے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنا جسم میں اٹھائے جانے سے یہ بتایا کہ چرچ جو کوئی یسوع پر ایمان لے کر آئے گا وہ اٹھایا جائے گا. ہیلیلویا. اور وہ اس زمین سے آسمان تک کی اپروچ رکھتا ہے، اور زمین اس کا وطن نہیں ہے. ابراہم کو دیکھ لیجئے، یعقوب کو دیکھ لیجئے، یوسف کو دیکھ لیجئے، اور جا کر عبرانیوں کا خط پڑھ لیجئے. وہاں پر وہ کہتے ہیں وی آر پلگرمز، وی آر ریفیوجیز، وی آر فارنرز. بولتے ہی نہیں ہو گال. میں جب ملیشیا میں تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں امال کی کتاب میں کے اندر ہوں. یہ آواز تو آج چرچ کی ہونی چاہیے تھی، یہ آواز تو آج ایماندار کی ہونی چاہیے تھی، یہ ایماندار کی بات ہونی چاہیے تھی. یہ ایماندار کو دن رات یہ کہنا چاہیے تھا وی آر ریفیوجیز، وی آر فارنرز، وی آر پلگرم. اے میرا وطن نہیں، میں غیر ملکی ہوں. یہاں پر صرف یسوع مسیح کی نمائندگی کرنے آیا ہوں. یسوع مسیح کی اسینشن یہ بتاتی ہے ہر ایک کرائسٹ، ہر ایک کرسچن یہاں پر پلگرم ہے، اور یہاں سے اٹھایا جائے گا اور آسمان پر بسایا جائے گا. ہیلیلویا. تے ساڈا جینا ویکھو، اسی بھلے ہوئے ہاں، اسی بھلی دے ویڑے بیٹھے ہوئے ہاں، سانو پتہ ہی نہیں، سانو غم ہی نہیں. اور اگر آپ رسولوں کو پڑھ لیں ہر دن اجے تن میں دیسا اے منہ دا کے دیکھ رہے ہیں. یہاں پر میں سوچتا ہوں یہ سینٹر ہے. کیا ہے؟ یہ سینٹر ہے. یسوع مسیح جہاں پر اٹھایا جاتا ہے یہ سینٹر ہے. اس سے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو یسوع کی نبوتیں اور اس کی پیدائش ہے. پھر دیکھیں تو یسوع مسیح کا مرنا اور جی اٹھنا ہے، واسطے تک اٹھائے جانے پر. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہولی اسپرٹ ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ یسوع مسیح کی آمد ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ بادشاہی ہے. سینٹر آپ دیکھیے. کاش چرچ اسینشن کو جانتا، چرچ جانتا کہ اس جگہ پر ارے ساری چیزوں کی ورشپ ہوتی ہے. یسوع کا جہاں پر مردوں سے جی اٹھنا ساری چیزوں پر مار کرتا ہے، وہاں پر اس کا اٹھایا جانا اب آسمانی نبوتوں کی بات کرتا ہے، آسمانی منزل کی بات کرتا ہے. اب وہ ہمیں سر اٹھا کر جینا سکھاتا ہے. ہم کبوتروں کی مانند، ہم عقاب کی مانند. اور یہ بات تو سادہ ہے لیکن یہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گی. جب اب دیکھیں یسوع مسیح نے کہا اس کے ساتھ کیا جڑی ہے، ذرا پڑھیے دوبارہ سے لکھا ہے. وہ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر واو اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے کیا کر لیا؟ چھپا لیا. اور اس جگہ پر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خداوند کے حضور ان کے سامنے ان کو یہ بات بتائی اور کہی گئی کہ خداوند یسوع مسیح جب اوپر اٹھایا جاتا ہے تو مختصر سا سادہ سا بائبل مقدس کا یہ بیان پوری دنیا کو ہلانے والا ہے. کیونکہ یسوع مسیح کے لوگ بلینز جب یہاں سے غائب ہوں گے تو وہ مسیح کے اسینشن کو پوری دنیا پر ظاہر کر دیں گے. اور پھر یسوع مسیح کا آنا اور یہ پوری دنیا کا انتظار ہے. ہر قوم، ہر نبی، ہر قبیلہ، ہر امت بنی اسرائیل تب جانے گی کہ یسوع جس طرح آسمان پر گیا ہے ویسے ہی واپسی آئے گا. اچھا اس جگہ پر اگر آپ دیکھیں تو اتنا زبردست عبادت کا ماحول ہے کہ ہم نے اس ماحول کی وجہ سے ہم نے اس عبادت کا مزہ بھی کھو دیا. تو یہاں پر ذرا پڑھیے کیا لکھا ہے. لکھا ہے
उठा जब लिया गया, बदली ने उससे उनकी नजरों से छिपा लिया। इधर देखो, मैं और आप इस जहान से छिपने वाले हैं जिस तरह यीशु मसीह छिपा है। मैं और आप उठाए जाने वाले हैं जिस तरह यीशु मसीह इस जमीन से उठा है। और आगे लिखा है, और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से क्या कर रहे थे, देख रहे थे, तो यहां पर क्या लिखा है, तो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। दो बातें यहां पर, जब यीशु ते गया ना तो ये अकेले फील ना करे, ते एंजल्स आके कोल खड़े हो गए। जेड़े आज मैं फ्राइडे मीटिंग में एंजल्स पढ़ा रहा हूं, सानू एंजल्स दा नहीं पता, या ते सानू बहुत उत्ते दा पता है या फिर बहुत ही थल्ले दा पता है, दरमियान वाली गल दा नहीं पता। और हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है एंजल्स के हवाले से, यीशु मसीह की खिदमत में एंजल्स आपको हर जगह। मेरी बात तो सुने, पैदाइश पर एंजल्स आपको नजर आते हैं, आते कि नहीं आते? अच्छा, फिर यीशु मसीह की मूर्तों में से जी उठने पर क्या नजर आते हैं? नजर आते कि नहीं आते? अच्छा, फिर अब यहाँ पर उठाए जाने पर यीशु मसीह के फरिश्ते नजर आते कि नहीं आते? बताइए, आते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, जब उसकी आमद होगी तो मुकर्रब फरिश्ता की आवाज ललकारी जाएगी, नरसिंगा फूंका जाएगा, वहां पर फरिश्ते है या नहीं है? अच्छा, मुझे बताइए, बादशाही में मैंने पढ़ा खुदावन के बहुत सारे फरिश्ते उत्थे भी मौजूद नहीं। अच्छा, अब जरा सीन सुनिए। असी ना फरिश्तियां ने एक जगह मिस नहीं की थी, केड़ी? असेंशन की जगह मिस नहीं की। अच्छा, चर्च ने असेंशन की जगह मिस कर दी। अच्छा देखिए, फरिश्ते पैदाइश पर भी हैं, फरिश्ते उसके जी उठने पर भी हैं, फरिश्ते आसमान पर जाने पर भी हैं, फरिश्ते उसके आने पर भी हैं, फरिश्ते बादशाही में भी हैं। कोई जगह मिस की थी? नहीं की थी। अच्छा, चर्च ने आज असेंशन ऑफ क्राइस्ट उतो गैर हाजिर है। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या असेंशन पर जिन रसूलों की हम दावे करते हैं, जिन रसूलों का हम दम भरते हैं, जिनके क्योंकि उन्होंने यीशु को देखा था, सुना था, गौर किया था, जिनकी बातों पर जिनको रूह कुछ ने कलम बंद करवाया, मुझे बताइए वो असेंशन पर थे कि नहीं थे? बोले थे। अगर नहीं था तो यहूदा इस्करियोती नहीं था, अगर नहीं था तो वो बदकार फरिश्ते नहीं थे। लेकिन अगर आसमानी माहौल देखे तो यीशु मौजूद था। अगर आसमानी माहौल देखे, इबादत किसको कहते? जब आसमान नीचे उतर आता है। अगर आसमानी माहौल देखे तो वादा पूरा हो रहा है। अगर आसमानी माहौल देखे तो एंजल्स वहां पर है। अगर आसमानी माहौल देखे, मेरे और आपके बुजुर्ग रसूल वहां पर मौजूद हैं और वो देख रहे हैं और वो उस जगह पर मौजूद है। और इससे पहले कि यीशु उठाया जाता, एक बहुत पावरफुल वर्शिप वहां पर। अच्छा, मेरी बात सुने, असेंशन अगर आप जानते हैं तो फिर आप सुने उसके साथ को भी जानेंगे कि एंजल्स को भी जानेंगे। अगर आप असेंशन को जानते हैं, फिर अगर आप असेंशन को जानते हैं तो फिर आप के अंदर कोई भी तन्हाई है, फौरी तौर पर खुदा उसे खत्म कर। लिखा है फरिश्ते आकर खड़े हो गए। बोलो, फरिश्ते आकर क्या हो गए? कि अपने आप को कल्ला ही ना फील करे। मैं आपको बताऊं, बिलीवर्स की बहुत बड़ी पहचान है, वो जिंदगी के किसी मोड़ पर अपने आप को अकेला फील नहीं करता, क्योंकि खुदा बाप, बेटा, रूह कुछ, एंजल्स हमेशा उनके करीब रहते हैं और उन्हें तकवीयत देते रहते हैं। हालेलुया। ऐसे जैसे ही यीशु मसीह मूव करता है, एंजल्स वर स्टैंड देयर। तो अब कैसा फील करते होंगे? रूहानी माहौल खाली नहीं हुआ उस जगह के ऊपर। तो हुआ क्या है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। पहली बात कि ये जो दो फरिश्ते हैं, ये उनके सामने आकर खड़े हो गए ताकि ये अपने आप को अलोन, अपने आप को तन्हा, अपने आप को फील ना करें। अरे यीशु मसीह की हर एक खिदमत पर एंजल्स खड़े थे। अरे जब आप असेंशन के मुकाशफा को लेते हैं तो आप एंजल्स की कुर्बत, एंजल्स की स्टैंडिंग, एंजल्स आपके पास खड़े हो जाते हैं कि जिथे कोई रूहानी बंदा खड़ा होए ना, उत्थे माहौल बदल जाता है।
वहां की सराउंडिंग, वहां का अराउंड उसके असर के गलबा में आ जाता है। आसमान थल्ले उतर गया और उन्होंने उस जगह को घेर लिया। थे करने क्या लगे? पहले यीशु गला कर रहे थे। अब देखिए ये जो सफेद पोशाक है ये क्या जाहिर करते हैं? फरिश्तों को। और ये जो मर्दों की तरह खड़े हैं ये उसकी इंसानी सूरत में जाहिर होने को पेश करते हैं। अगर एक हवाला आप पढ़े लुका की इंजील उसका 24वां बाब 4 आयत पढ़े, वहां पर फरिश्ते इंज दे फरिश्ते नजर आंदे ने। पत्थर लुढ़का दिया, बैठ के जरा देखिए उस जगह पर फरिश्ते हैं। फरिश्ते आपकी जिंदगी में, खिदमत में, आपकी तन्हाई में, आपकी कंफ्यूजन में, आपके क्वेश्चन में, आपके सरप्राइज होने में आकर खड़े हो जाते हैं ताकि मैं इसे सॉल्व करूं। पढ़िए लुका 24। है थे भी इंसानी सूरत और थे भी दो शख्स, असल में ये एंजल्स हैं। हाँ जी, ये अहलियत रखते थे कि इंसानी सूरत इस खास की सूरत में जाहिर हो जाएं। आकर क्या हो गए? बोलो क्या हो गया आकर? अच्छा, उधर भी कंफ्यूजन थी, उधर भी परेशानी थी। वहां पर भी वो लड़की जो कब्र के ऊपर थी वो रो रही थी। मैं आपको बताऊं, खुदावन तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। खुदावन तेरे साथ एंजल्स रखता है। खुदावन तेरे लिए रूह कुद्स रखता है। खुदावन कभी एक लम्हा भी तुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। तो इस जगह पर एंजल्स आकर क्या हो गए? खड़े हो गए। जब आप असेंशन की बात करते हैं, जब आप जी उठने आसमान पर जाने की बात करते हैं, तो याद रखिए उस माहौल में यीशु है, वादे हैं, फरिश्ते हैं, उनका खड़ा होना है, तन्हाई का इलाज है, सवालों का इलाज है, और तेरे गिर्द आसमानी माहौल का असर है। आए आगे चलते हैं। तो क्या कहा उन्होंने? तो एंजल मर्द ने यहां पर भी मौजूद हैं। खुदावंद एंजल्स की मूवमेंट यहां पर हम देखते हैं। आज मेरी दुआ है जब आप इस इबादत में शामिल हुए हैं तो खुदावंद इस इबादत के वसीला से तुम्हारी एंजेलिक ट्रैफिक को स्विच ऑन कर दे। तुम्हारे घरों में, तुम्हारी जिंदगियों में तुम्हें वो आंखें मिल जाएं जिससे आप फील करो आई एम नॉट अलोन। यस आई नो God is with me. Holy Spirit is with me. Yes, Jesus Christ is with me. और फिर आप ये कहें कि angels are also with me. तो वो भी हैं आपके साथ। तो फिर आप फील करेंगे कि आप उनकी मूवमेंट को फील करेंगे। एनियो है कि खड़े हो गए तो तुसी फील करो। वो बोले हैं, उन्होंने जवाब दिया है, उन्होंने उनके साथ बातचीत की है। यीशु दे थले और ये बातें करने लगे हैं। असेंशन एंजल्स की जो है मूवमेंट का हिस्सा है। आए देखिए जरा, लिखा है और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ क्या कर रहे थे? गौर से देख रहे थे। क्या कर रहे थे? गौर से आसमान की तरफ देख रहे थे। अब इस जगह पर जब वो गौर कर रहे थे, गौर से देख रहे थे, तो सवाल पैदा होता है कि आखिर इनकी जिंदगी में क्या वजह चल रही थी। अच्छा, बंदा गौर ना पता कदों देखता है या कब उसकी निगाहें टिक जाती हैं? जब वो बहुत गहरी सोच में चला जाए। एक दूसरी वजह ये हो सकती है कि जब वो जाता है, जब वो किसी गम में डूबा हुआ होता है तब, या फिर उस वक्त गौर से देखने लगता है जब कोई हैरानगी, कोई ताज्जुब, कोई क्वेश्चन उनके अंदर जो है वो मूवमेंट कर रहा हो, तब वो गौर से देखता है। तो कोई भी जज्बात हो सकते हैं, लेकिन यहां पर पता क्या हुआ है? गम का और रंज का है। जो ही यसु जुदा हुआ, इन्हां दियां का यसु दे बदली च छुप गया, लेकिन इनकी आंखें वहां पर ठहर गई। और ये इस बात की अलामत है कि ये गहरी सोच में चलेगी। ये इस बात की अलामत है कि ये रंज में चलेगी। तुहानू पता है कि कैसे, हालांकि इससे पहले एक जबरदस्त वर्शिप हुई है लुका की इंजील के अंदर। जरा निकाले मेरे साथ, मैं उसको हल्का सा दोहरा देता हूं। 24वां बाब 85वीं से 53वीं आयत पढ़ेंगे और वापसी इसी पर आएंगे। अब देखिए यहां पर क्या है।
ان کے تعجب کا, ان کے غور سے, ان کے غم میں ڈوبے ہوئے کا, ان کی گہری سوچ کا فرشتوں نے کیسے کیا کہا, ان کو کیا بات کی, اور یہ ریسٹور ہو گئے. یہ ان کے اندر سے وہ فیلنگ رنج کی چلی گئی. آئیں ذرا دیکھیں, پہلے پڑھ دیجئے 24ویں باب کی 50ویں 53ویں آیت پڑھیے. ہاں, اب دیکھیں یہ عبادت ہے. جب یسوع آپ پر جانے لگا تھا تو ہاتھ اٹھا کر کیا دی, تو یہ عبادتی ماحول ہے اس جگہ پر. یسوع بلیس کر رہا ہے لوگوں کو. آگے, ہاں ہاں آگے, آسمان پر اٹھایا گیا. اچھا اب دیکھیے یہاں پر خوشی کا ذکر ہے, وہاں پر غور سے دیکھ رہے تھے. اب اس کے درمیان اینجلز آئے تھے. اس کے درمیان اعمال کی کتاب بتاتی ہے, اس کے درمیان یہ جب خوشی سے لوٹے ہیں, جب یسوع انہیں بلیس کر رہا تھا, تو جب یہ برکت حاصل کر رہے تھے, جو ہی یسوع نے بدلی نے یسوع کو چھپا لیا, یہ غم میں چلے گئے, یہ غور میں چلے گئے. لیکن جب اینجلز آئے, اینجل کھڑے ہو گئے, تو اس کے بعد یہ خوشی سے لوٹے ہیں. آئیں ذرا دیکھیے واپسی اعمال کی کتاب میں آئیے اور دیکھیے یہاں پر کیا لکھا ہے. غور سے دیکھ رہے تھے تو کیا ہوا, یہ مرد آئے, یہ اینجلز آئے. آج میرا سوال ہے آپ سے, جب فرشتوں نے اس جگہ کو مس نہیں کیا تو میں آپ کے لیے بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بھی اس عبادت کو مس نہیں کیا. ہاللیلویا. اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اینجلز یہاں پر موجود ہیں, آج آپ کی زندگی میں بھی آئے. اور اگر آج آپ کی زندگی میں کسی بات کے لیے آپ کا دماغ ٹھہر گیا ہے, نگاہیں ٹھہر گئی ہیں, آپ غمگین ہو گئے ہیں, تو میری دعا ہے کہ خداوند کے اینجلز آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع کریں. روح القدس کی امید, اور دیکھیں وہ کیا بات کر رہے ہیں. لکھا ہے, ہاں جی, واپسی اعمال کی کتاب کے 10ویں باب میں آئیے. جب انہوں نے چھپا لیا تو دو مرد سفید پوشاک پہنے, کیا ہاں بس رکیے, کیا کہنے لگے, اے گلیلی مردو. اچھا یہاں پر ایک بات سیکھ لیجیے, میں نے جہاں کہیں بھی اینجلز کی انفارمیشن کو پڑھا ہے بائبل مقدس میں سے, وہ 110% بالکل درست رہی ہے. لیکن میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں, ان کے اینجلز نے آ کر جب بتایا تو جی ساری رپورٹ غلط سی. لیکن بائبل کے اینجلز نے جب مریم کو کہا, جب اس نے یوسف کو کہا, جب اس نے کرنیلیس کو کہا, جب وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں, تو دیکھیے وہ انہیں کہہ رہے گلیلی مردوں. صرف یہودا اسکروتی تھا جو اس گلیل کے علاقے کا نہیں تھا, باقی سارے شاگرد جو تھے وہ گلیل کے علاقے کے تھے. تو وہ کہہ رہا ہے اے گلیلی مردوں. تو ان کی 110% انفارمیشن ٹھیک ہے. جو خداوند کی طرف سے فرشتے آتے, یاد رکھیے وہ کبھی بھی آپ کو مس گائیڈ نہیں کریں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے جو اینجلز آپ کی زندگی میں آئیں گے, یاد رکھیے کہ وہ کلام سے آپ کی رہنمائی کریں گے. میں آپ کو بتاؤں, ایک ٹھیک ایماندار, ایک ٹھیک خادم اور ٹھیک اینجلز کی یہ پہچان ہے کہ وہ کلام سے مطابقت رکھیں گے. ہاللیلویا. آئیں ذرا پڑھیے, دیکھیے کیا لکھا ہے. اور کہنے لگے اے گلیلی مردو. ہاں جی, ہاں ہاں, بولو خداوند یسوع مسیح کی. اب یہ فرشتے نے ان کو کہا ہے, اتنے کھڑے رہو گے, آپ اداس ہو گئے ہو, آپ پریشان میں چلے گئے ہو, لیکن سنو میں تمہیں ایک وہ خوشی کی خبر دیتے ہیں. مجھے بتائیے, یہی لکھا ہے یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا. اٹھایا گیا کہ نہیں اٹھایا گیا؟ اچھا بات ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ فرشتوں کی بات ٹھیک ہے, گلیلی مردوں کی بات ٹھیک ہے جو اس نے کہی. اگلی بات سنیں, لکھا ہے یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا اسی طرح پھر آئے گا. بولو خداوند یسوع مسیح کی. آپ کو پتہ ہے اسینشن آپ کو زمین سے اٹھاتا ہے, آسمان پر لے جاتا ہے, اور جو اگلی بات کہی کہ وہ پھر آئے گا, وہ تجھے پھر آسمان دکھاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات جو اس نے کہا کہ پھر آئے گا, یہ تسلی کی بات ہے. بولو کس کی بات ہے؟
एक गमगीन हो गए सर ना, उन्होंने कहा फिर आएगा। मुझे बताइए कोई ऐसा शख्स है जो आसमान पर गया हो और फिर उसके वापसी आने की भी बात की गई? कोई भी नहीं। अब मैं आपको बताऊं, आप में से कितने लोग जानते हैं कि गलतियों के खत में, थसलिकियों के खत में ये लिखा है कि तुम इन्हीं बातों से एक दूसरे को, केड़ी गल्लां, यीशु मसीह की आमद से। आपको पता है जब उन्होंने देखा कि ये परेशान हो गए हैं तो असेंशन आपको एक बड़ी जगह, आपको फॉरेनर्स, आपका मुल्क, आपकी राह आपको दिखाती है कि कहां पर यीशु मसीह की कुदरत जोर से काम करती है। सिर्फ एक है जो उसकी राह जानता है, एक है जो आसमानी है, एक है जो आसमान पर उठाया गया, एक है जो वापसी आने वाला है। वो चर्च पैगाम रखता है। एदे तो इलावा सीन नहीं है। आए थोड़ा सा वापसी इस जगह पर मैं तसल्ली की बात लिखा, फिर आएगा, फिर आएगा। उसने ये कहा एंजल्स ने, जैमें कई नए कल, तो ये कलाम की बात थी। मैं आपको बताऊं, एक कहानियां स्टोरियां तानू कभी तसल्ली नहीं देने गया, लेकिन चूं ही कलाम की बात आपकी जिंदगी में जाएगी आप पीसफुल हो जाएंगे। कलाम आपको तसल्ली दे देगा। और फरिश्तों ने आके कहा वो फिर आएगा, और ये तसल्ली है। और इस बात से वो खुश होकर क्या हुए, वापसी लौटे। उसको बाद में देखेंगे। और पता कितने लौटे? हैकल में। वहां पर लिखा लुका की इंजील में, कहां लौटे? हैकल में। और मैं आपको बताऊं, कभी जब खुदा आपको ब्लेस करे, स्पिरिचुअल, रूहानी, माली ब्लेस करे, तो हैकल की तरफ जरूर लौटना। मैं आपको 3 लोग बताता हूं। हिजकिय्याह जब मरने लगा तो खुदा ने उसे जब 15 साल और जिंदगी बढ़ा दी, तो लिखा है मैं तेरी हैकल में खड़ा होकर तेरा क्या करूंगा, शुक्रगुजारी करूंगा, तेरी हैकल में खड़ा होऊंगा। उसने ऐसी बात कही कि मैं तेरी हैकल में लौटूंगा, मैं जाऊंगा। दूसरे दिन के तीसरे दिन की उसने बात की। कैसी जबरदस्त बात। जब उसे शिफा मिली तो उसने हैकल में आने की बात की। अच्छा, फिर आप पढ़ लीजिए दूसरा तवारीख गालबन 20:12 या 12:20 के अंदर, जब उस पर चढ़ाई की बादशाह ने, तो उसने कहा कि मेरे पास ये जोर नहीं है, लेकिन खुदा की हैकल में बच्चे सब खड़े हो गए। और जब वो बराका की वादी पर गए तो बराका की वादी पर फतह भी पाई, दुश्मन से भी लड़ना नहीं पड़ा, बहुत सारा लूट का माल लाए। तो वहां पर लिखा है वो पहले हैकल में आए। अच्छा, यहां पर रसूलों की बात देखें। जब इन्होंने बहुत बड़ा सीन देखा यीशु का जाने का, और जब ये गमगीन हो गए, बरकत थी, इबादत थी, जब एंजल्स इनके साथ आकर खड़े हो गए और ये कह रहे थे कि तुम अकेले नहीं हो और यीशु फिर आएगा, तो इस बात ने इनको क्या कर दिया, ये भर गए और लिखा है हैकल की तरफ लौटे। रूहानी तौर पर जब ये ब्लेस हुए तो हैकल की तरफ लौटे। मैंने देखा जोड़ा जुदो बंदा माली, रूहानी, बदनी, फिजिकली, स्पिरिचुअल, जूं वो ब्लेस होता है, मैंने देखा उन्हें शैतान हैकल चो काट देता है, हैकल चो दूर निकल जाता है। और दाऊद कहता है मैं खुश होया जो मैनू आखन लगे आओ यहोवा दे घर चली। असी घर आके भी खुश नहीं होंगे, ओनू खाली खुदा दे घर दा कित्थों भी पता लगता है कि आओ खुदावन के घर चले। जॉय, उसकी आसमानी खुशी उसे छूने लगती है, वो खुश हो जाता है कि खुदावन के घर चले। इसलिए चर्च, आप माली हिजकिय्याह से सीखिए, आप दूसरे तवारीख के बादशाह से सीखिए, आप रसूलों से सीखिए कि वो कहां पर आए, लौटकर हैकल की तरफ आए। आए जरा देखिए कि वो हैकल में जब आ रहे थे तो पढ़िए लुका उसका 50वां 51, 52, 53 आयत जरा पढ़िए, आखिरी आयत तक पढ़िए। हाँ, वाह वाह, हाँ, वाह 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 वाह। एंजल्स इनके साथ और रूल कुछ की उम्मीद इनके साथ, खुदावन के वादे इनके साथ, बरकत इनके साथ। असेंशन ने इनको रूल कुछ की, असेंशन ने इन्हें बरकत की, असेंशन ने इन्हें एंजल्स की, असेंशन ने यीशु मसीह की आमद की पैगाम से भर दिया। लौट आए, हैकल
हैकल से जुड़ गए, हैकल के साथ जुड़े रहे, मरते दम तक एक भी इनसे खुदा की हजूरी के खिलाफ नहीं गया, बेवफा नहीं हुआ। खुदावन की हजूरी और उसकी असेंशन ने इनको पिलग्रिम बना दिया, इनको यीशु की आमद की उम्मीद दे दी, इनको रूल कुछ की उम्मीद दे दी। ये वापसी आए और आकर हैकल के साथ जुड़ गए और उस जगह से इन्होंने पहली सदी में पूरी दुनिया को रीच कर दिया। बोलो खुदावन यीशु मसीह की ये असेंशन ने ऐसा किया। इसलिए ये रूल कुछ से भरे, उसके इंतजार में रहे, उसके साथ जुड़ गए। खुदावन ने इनकी जिंदगी में ऐसा बड़ा अजीब अनोखा काम किया। तो उन्हें तसल्ली क्या थी? मसीह जो आसमान पर गया है दोबारा आएगा। आए जरा मेरे साथ एक हवाला देखिए, 12वीं आयत जरा पढ़िए। हाँ जी पढ़िए, पहले बाप की जकरिया आप पढ़िए, 14वें बाप की 4थी आयत। अच्छा, यीशु मसीह कोई जैतून से आसमान पर उठाया गया, और जकरिया सुनिए वो क्या कहता है, वो कहां पर आएगा। पढ़िए जरा जकरिया 14:4। हाँ, आमीन। आपने देखा कि वो वापसी कैसे आएगा, गया किथों कोई जैतून तो, आएगा किथों कोई जैतून पर। ऐ गल दी तसल्ली। अब ये नबूवत ने उनको तसल्ली दी। एक और बात, उसने शख्सी तौर पर साउथ फरमाया, पढ़िए मिलाकी 3:1, वो फिर बादशाही करेगा इस जमीन पर। शख्सी तौर पर एक ही बादशाह होगा, एक ही बादशाह जो बादशाहों का भी बादशाह होगा, खुदावंदों का भी खुदावंद होगा। पढ़िए मिलाकी 3:1। और मैं अपने रसूल को भेजूंगा। हाँ, हाँ, आमीन। अब ये देखिए, पेशन गोई यीशु मसीह के आमद के बारे में हो रही है, और यूहन्ना ने उसकी मुनादी की कि वो आएगा, और वो आया इस जमीन के ऊपर। और इस जमीन के ऊपर जैसे यसाया ने जैसे यूहन्ना ने उसके पैदा होने की पेशन गोई की है। चर्च आओ, मैं और आप भी यही पैगाम रखते हैं। देखो वो जल्द आने वाला है, और वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह होगा। वो कैसे गया आसमान पर? इधर मेरी तरफ देखे, दीदनी तौर पर गया। उसे देख रहे थे, वो आएगा भी पता कहीं देखेंगे लोग उसे। आए देखिए जरा मत्ती की इंजील 24वें बाब की 30वीं आयत। इसलिए वो तसल्ली की बात है। कभी भी आपको एंजल्स कोई बात कहे, खुदावन का बंदा कहे, ईमानदार कहे, तो याद रखें वो कलाम के साथ मुताबिकत रखती है, और खुदा फिर आपको छूने लगेगा, ब्लश करने लगेगा, बहाल करने लगेगा। पढ़िए क्या लिखा है मत्ती 24:30। हाँ, हाँ, हालेलुया। लोग कहते ने यसू किथे गया, चर्च कहता है यसू आसमान ते गया, तो फिर नहीं वो ईमान रखते। लेकिन याद रखना कौमें उसको देखेंगी आसमान से आता हुआ। हालेलुया। यहां पर लिखा है, अब तो जाते हुए रसूलों ने देखा, और वो इसकी गवाही देते हैं। मैं और आप कहते हैं कि वो आसमान पर उठाया गया है। लोग नहीं यकीन कर दे, लेकिन बाइबल कहती है बिल्कुल फरिश्तों ने कहा जंज गया वे उन जी तुसी ओनू आंदे वेखोगे। मत्ती की इंजील बताती है उसे आते देखोगे, खाली
ऐसी नहीं, कौम में उम्मतें उसको देखेंगी। हालेलुया। आए एक और बात, बादल ने उसे छिपा लिया। ऐसे ही लिखे है ना आयत 9 च, बादल ने उसे क्या कर लिया? छुपा लिया। अच्छा, वो जो मैं बात कर रहा था ना, वो इमाल की किताब के पहले बाब की 12वीं आयत में थी कि जैतून के पहाड़ से उठाया गया। ते जैतून दे पहाड़ ते उन्हें आना, और बादशाह है अकेला, और वही बादशाहत करेगा। दीदनी तौर पर गया, दीदनी तौर पर आएगा। बादल ने उसे छिपा लिया। तो पढ़िए मत्ती 24:30 को कि वो आसमान के बादलों पर आएगा। बोलो खुदावन यीशु मसीह की। जैसे तुमने उसे देखा है वो वैसे ही आएगा। जी पढ़िए। हाँ हाँ, आसमान के बादलों पर क्या करता देखेंगे? आता देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आए एक और बात देखिए, उसने जलाल के साथ सौद फरमाया और वो जलाल के साथ आएगा। हालेलुया, जलाल के साथ। और पढ़िए मत्ती 24:30वीं आयत को ही पढ़िए। हाँ जी, वाह। आमीन। हाँ जी, तो किसके साथ देखेंगे? लिखा है जलाल के साथ आते देखेंगे। और खुदावन जैसे जलाली बदन के साथ आसमान की बादशाही में गया, वैसे ही वापसी आएगा। मुझे कुछ हवाले बहुत अच्छे लगते हैं, आए इन पर नजर डाल लेते हैं। और ये आपके अंदर उस खूबसूरत मंजर को, उस खूबसूरत बात को आपके अंदर रखेगी कि मैं और आप परदेशी और मुसाफिर हैं, मैं और आप उठाए जाने वाले हैं। मैं और आप अब आसमान की तरफ देखें, लेकिन परेशान होकर नहीं। अब हमारे लिए भी फरिश्तों का पैगाम है, जिस तरह वो क्या है वैसे ही आएगा। और शहादतें हमने देख ली, वो दीदनी तौर पर गया, दीदनी तौर पर आएगा। वो बादलों पर गया, बादलों पर आएगा। वो जलाल में गया, जलाल पर आएगा। वो कोई जैतून से गया, कोई जैतून से गया, कोई जैतून पर आएगा। हमारे लिए भी तसल्ली है। आओ सर उठा कर जिए, आओ परदेशी और मुसाफिर हो। पढ़िए जरा मेरे साथ, निकालिए मरकस की इंजील उसका 16वां बाब निकालिए। ये आखिरी चैप्टर है और चंद एक बातें मेरे और आपके लिए बाइस से बरकत हैं। आए इसको देख लीजिए। 16वें बाब की आप पढ़िए 19वीं आयत। आमीन। क्या करने के बाद? कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया। असेंशन के रोज कलाम हुआ है, असेंशन के रोज बरकत जारी हुई है, असेंशन के रोज एंजल्स आए हैं, असेंशन के रोज क्वेश्चंस का हल हुआ है, असेंशन के रोज तेरी गहरी नजर का इलाज हुआ है, तेरे ख्यालों का इलाज हुआ है। असेंशन के रोज तेरी खुशी का इलाज हुआ है। असेंशन के रोज तुझे हैकल की राह मिली है। असेंशन के रोज तुझे रूल कुछ की उम्मीद मिली है। असेंशन के रोज तुझे यीशु की आमद का पैगाम मिला है। और यहां पर सुनिए क्या लिखा है। लिखा है कलाम के करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदावंद की दाहिनी तरफ बैठा है। हालेलुया। आए एक हवाला मेरे साथ देखिए यूहन्ना की अंजील में से, और इसको पढ़ दीजिए 6 बाब की 62वीं आयत। 6 बाब की 62वीं आयत। हाँ, अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते, हाँ थे सुनो पिछे अगर तुझी पढ़ो तो परेशान हो रहे थे। यीशु ने कहा ना मैं आसमान की रोटियां, मैं आसमान तो आया वहां, और तो वो परेशान हो रहे थे। उन्हें क्या जी तुसी यही तानू समझ नहीं आ रही, मैं आसमान दी रोटियां, तुसी मूसा दी रोटी ते इड्डे जिहड़े ना
तिड़े बैठे हो ते ओ रोटी ओ मन ते पिघल जाता सी, ओ मन ते खत्म हो जाता सी, ओ मन ते मकूफ हो जाता सी, लेकिन मैं खत्म होने वाला नहीं हूं और मैं अबदी हूं। तो मैं ओ मानना च ओ इहदे तो ही हैरान हो रहे सन। तो उन्हें कहा जिते तुसी इहदे तो ही हैरान हो रहे हो, जो सोचो तुसी इब्ने आदम नू आसमान ते चढ़दे वेखोगे। हालेलुया। और आज चर्च इस बात को भूल गया है कि यीशु मसीह आसमान पर चढ़ा है और इसलिए वो इस जगह पर चढ़ा है। तो देखे तो उन्होंने अच्छा इस बात का भी सबूत था कि यीशु आसमानी रोटी है, क्योंकि उसको आसमान पर उदों नहीं यकीन आंदा सी ते कहंदा उदों ते आएगा ना। गौर से सुने, यीशु ने कहा मैं आसमानी रोटी हूं, तो उन्होंने यकीन नहीं आना। कहंदा सी गलील तो आया, बड़ाई के बेटे तो आया, कैंज हो सकता है आसमानी रोटी। तो कहंदा फिर उस दिन आएगा जिस दिन मैं आसमान पर चढ़ूंगा। तो किसी उदों भी नहीं आया, तो पता कदों आएगा, जब वो आसमान से आएगा। उस दिन लोग नबी कौमें उम्मतें मानेंगी कि यीशु ही खुदावंद है। हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और आज खुदावंद के हुजूर कि ये खुदावंद हमें तूने आसमान पर उठने के लिए बुलाया है। तेरी असेंशन हमें जमीन का नहीं कहती। तू जहां से आया, तू जहां गया, खुदावंद हमें भी सर उठाकर जीने के लिए तूने बुलाया है। हम ऐसे उकाब, ऐसे परिंदे हैं जो उड़ना चाहते हैं, जो बुलंदी पर जाना चाहते हैं। आए मैं और आप अपने आप को पेश करें कि खुदावन तेरी असेंशन मेरी जिंदगी में मेरे गम का इलाज कर दे, मेरी तसल्ली का सबब बन जाए, मेरी गहरी सोच का इलाज कर दे, मेरी खुदा सवालों का जवाब दे दे, मुझे बरकत से भर दे। तो हाथ उठा और उसकी असेंशन की कुदरत को अफेक्ट होने दे, उसके असेंशंस की कुदरत को अपनी जिंदगी में काम करने दे। अब तुम फील कर सकता है, देख सकता है, गौर कर सकता है। दोनों हाथ उठाकर यीशु को आसमान पर जाते देख, उसका यकीन कर ले और तू रूह कुछ से भरेगा, तू कलाम से भरेगा, तू यीशु की आमद का इंतजार करने लगेगा। तू है कल को लौट जाएगा, तू सिजदों से भर जाएगा, तू कलाम से तसल्ली पाएगा, तू खुदावन के वादों में एंजल्स की मूवमेंट को देखेगा। दोनों हाथ उठा और दुआ करना शुरू कर। हिबारा बालका शदारा बालका तारा हिदारा बालका शदारा बालका हिला रखा तारा बालका शंदारा बारा हिला रखा शदारा बालका शदारा बारा। मैं और आप फॉरेनर्स हैं, मैं और आप यहाँ पर खुदावन के हुजूर जो है मुसाफिर हैं, मैं और आप यहाँ पर परदेशी हैं। चर्च दोनों हाथ उठा और खुदावन से कह कि जिस तरह तू आसमान पर गया है, तू आने वाला है, हमें भी तू उठाएगा। रूल कुछ तूने हमारी तसल्ली के लिए, फरिश्तों को हमारी खिदमत के लिए दिया है। हिबारा बाला का शदारा बाला हिला रखा शदारा बाला। खुदा जितनों ने तेरे दिन की ताज़ीम की है, आज जितने तेरे हुजूर में आए हैं, अपनी कुदरत से ने भर दे, अपने मसा से ने भर दे, अपने जोर से ने भर दे, अपने फजल से ने भर दे, इनकी इलाज कर दे। एंजल्स तुम्हारी मूवमेंट हो, रूल कुछ तेरी कुदरत काम करे, तेरा कलाम काम करे। हिबारा बाला का शदारा बाला हिला रखा शंदा। मैं एक लम्हे के लिए खामोश होऊंगा, आप यीशु मसीह की असेंशन के लिए शुक्रगुजारी करे, यीशु के साउथ के लिए शुक्रगुजारी करे, यीशु के आसमान पर उठाए जाने के लिए शुक्रगुजारी करे। लेकिन तू तन्हा नहीं रहेगा, तू अकेला नहीं रहेगा। रूल कुछ तुझे छू लेगा, रूल कुछ तेरे साथ हो लेगा और फरिश्ते तेरे पास आकर खड़े हो जाएंगे, वादे पूरे होंगे, कलाम पूरा होगा। हिबारा बाला का शदारा बाला का शदारा हिला रखा शदारा बाला का शदारा हिला रखा शंदारा बाला का शंदारा। मैं खामोश होने लगा हूं, आप दुआ करना शुरू कीजिए। जीसस